जय श्री बाबा लाल जय जी। श्री बाबा लाल जी। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਦਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਦਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹਾਈਟ ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਦਤਾਰਪੁਰ ਧਾਮ ਬਾਰੇ। जय बाबा लाल जी की जी। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਧਵਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਾ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਤਾਰਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਢਡੋਆਲੇ ਸਥਾਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਢਡੋਆਲ ਰਾਜਪੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਔਰ ਨਾਨਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸੇ ਹੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਬਾ ਤਪਾਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਮਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਮਪੁਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਲ ਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਤੀਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਥੇ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤਪਾਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁਟੀਆ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ, ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਵਿਗ੍ਰਹਿ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਮਾਧੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਵੈਸ਼ਨੂ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਤਪਾਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਥੇ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਬਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਥੇ। ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਏ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਓ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਮਹੰਤ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸੰਤ ਥੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ। 60 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਥੀ ਇੱਕ ਜਗੀਰ ਥੀ। ਜੇ ਜਗੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਢੋਲਵਾ, ਜਨੌੜੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਊਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ फैले हुए। आज भी ढडोहाल राजपूत जड़े हैं जो इतने रहते हैं। राजा दतार चंद भी जिन्होंने इस जगह का नाम, इस पिंड का नाम दतारपुर किया है, वो भी इससे राजवंश के नाल तलक रखते रहे। और तपादास जी महाराज जी की मुलाकात जो हुई बड़े एक आश्चर्यजनक घटना के नाल। और जो तपादास जी इतने आए, राजा जी ने उन्होंने आग्रह करके इतने लिया और कुटिया बना करके दी। फिर बाबा लाल जी जो राजा दतार चंद की गद्दी नशीनी होनी थी तो इतने के कुछ सतवंते सज्जना ने बाबा लाल जी ने आग्रह किया कि तुसी दतार पर आकर के जड़ा है गद्दी नशीनी तो सब तो पहले पगड़ी थोड़ी होएगी और तिलक तुसी करोगे। महाराज जी बाबा लाल जी इतने आए आकर के, क्योंकि राज उत्सव था लगभग 10-15 दिन तक चलिया। महाराज इसी जगह पर विराजमान रहे और उन्होंने फंक्शन वाले दिन राजा दतार चंद जी को तिलक भी किया ते पगड़ी भी दी। और बाद तपादास जी को बहुत प्रभावित थे
पहले भी प्रभावित थे और फिर उन्होंने क्या कि दातारपुर रामपुर की गद्दी जी है तुसी इनू देखभाल करना है। इस जगह ते महाराजा रणजीत सिंह ने भी काफ़ी जगीर जी लगाई हुई है और अज भी सारा दरबार का खर्चा जड़ा है, लंगर की व्यवस्था चलती है। सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय भी इतने चलता है, एक कन्या महाविद्यालय चलता है। तो पूज्य महाराज जी का गुरुदेव महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है शिक्षा क्षेत्र के विच। असी रामपुर भी इतों थोड़ा ही 12 किलोमीटर की दूरी है, दसूआ तो 17 किलोमीटर दूर पैंदा है। उतों भी महाराज जी ने एक बट वृक्ष है, उत्ते महाराज जी सत्य बाबा लाल दयाल जी की समाधि स्थल है। और चतुर्मास साल के 4 महीने जड़े की आषाढ़ी पूर्णिमा तो शुरू होता है, वो महाराज जी उत्ते इकट्ठा कर देते हैं। और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी वाले दिन जब वो समापन होता है उतो महाराज उत्थे ही महाराज रिहा करते थे। हरि प्रबोधनी काशी चुमासा महाराज उत्थे इकट्ठा करते थे रामपुर। बड़ी रमणीक जगह है रामपुर और सारे जिन्हें थे गुरु परंपरा हुई है उन्होंने समाधि स्थल भी उत्थे है। और बट वृक्ष बड़ा प्राचीन वृक्ष है जितने बैठ के महाराज तब क्या करते थे, बौली भी उत्थे है और दो की जड़े होते स्नान वगैरह करते रहे हैं। इतने ही महाराज जी का ये सारा स्थल जड़ा है वो बाद ही इस जगह का निर्माण होया और लगभग 1655 के विच महाराज ने जड़ा है ये सारा दसिया। एक बड़ी मुख्य अपना रहने वास्ते यात्रियों के रहने के वास्ते भी निवास स्थान बनया हुआ है। दूर दूर तो यात्री आते हैं और रात में इतने ठहरते भी है बिना किसी भेदभाव तो। असी यो ही है कि सत्य बाबा लाल दास जी महाराज ने जो धर्म का प्रचार किया, जी की ज्योति जगाई और ज्योति सदा जगदी रहे। हूँ अगे भी कहना इतने संक्रांति और रामनवमी जन्माष्टमी नवरात्रे पर्व मनाए जाते हैं। दूज वाला काल पिछे दूज भी सी, दूज ने भी सारी संगत में बहुत ढेर सारी शुभकामनावां ते बधाई। अगे 23 जनवरी को भी जड़ा है सत्य बाबा लाल दयाल जी का महाराज जी का प्रकटो उत्सव आ रहा है। उस उत्सव दियाँ भी सारियां ढेर सारिया शुभकामनावां ते बधाई। इत्थे भी बाबा लाल जी का प्रकटो उत्सव जड़ा है 23 जनवरी को बड़ी धूमधाम के नाल मनाया जाएगा। ये सारा क्षेत्र इस क्षेत्र के लोग बड़े सतवंते सज्जन है, बड़े श्रद्धालु है और इत्थे आंदे मत्था भी टेकते हैं और उन्होंने एक स्थान के नाल बहुत एक योगदान है। तुसीं इत्थे आयो, तुहानूं भी बहुत शुभकामनावां ते बधाई। तुहाडा जीवन भी मंगलमय कल्याणमय रहे। इन्हीं भावना के नाल बोलिए सत्य बाबा लाल दयाल महाराज की जय। जय शेषनाथ जी का प्राचीन मंदिर है जहाँ पर तपादास महाराज की जो है जहाँ के राजा से जो है मुलाकात हुई थी 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये सामने जो है बाईं ओर सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय लगभग जो 100 वर्ष पहले हमारी भारतीय संस्कृति की सेवा कर रहा है। साथ में कन्या महाविद्यालय है जहाँ पर जो है इस क्षेत्र की जो है लड़कियाँ BA तक जो है स्नातक तक जो शिक्षा ग्रहण करती है। तो ये पूज्य महाराज का ये एक है कि वो शिक्षा के बड़े प्रेमी थे और शिक्षा के क्षेत्र के बीच में उन्होंने क्षेत्र को जो बहुत बड़ा योगदान दिया है। जो अपने काले जाइए। ਅਸੀਂ ਰਾਮਪੁਰ ਦਰਬਾਰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਧੀ ਸਥਲ 1655 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਲ ਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਚਤੁਰਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ थे और 4 महीने
एकांत विच रह करके भजन करके, क्योंकि चतुर्मास दे विच संत लोग ज़्यादा बोलते नहीं, एक कंन खांदे हैं, केस नहीं कटने, कुछ ऐसिया परंपराओं का पालन कि लोग ज़्यादा ना मिलन, साधना विच कोई रुकावट ना आए। तुसीं देख ही रहे हो कि सारा आसे पासे जंगल ही जंगल है। हुण भी इत्थे बाघ आ जाता है, कई बार गड्डी अगे खड़ा हो जाता है। और बड़ी प्राचीन जगह है, महाराज का एक समाधि स्थल है। इत्थे ही नारी असीं खड़े हाँ सतगुरु बाबा लाल दयाल जी समाधि के अगे। बड़ा प्राचीन स्थल है। पूज्य महाराज जी की परम इच्छा थी, क्योंकि गुंबद बड़ा था, बिल्कुल छोटा जिहा था। महाराज जी गुरु महाराज महंत राम प्रकाश दास महाराज जी की एक हार्दिक इच्छा थी कि गुंबद एक अच्छा बने, और असीं प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी रुकावट आई फाइनेंस के तौर पर भी, लेकिन बड़े काफ़ी सेवक जन जो सहयोग कर रहे हैं और कार्य जो है चल रहा है, और धीरे धीरे कार्य प्रगति के उपर है। और असीं हुण धीरे समाधि की तरफ जा रहे हैं, जिहड़ी कि बहुत ही प्राचीन समाधि है सतगुरु बाबा लाल दयाल जी महाराज जी की। महाराज जी कार्तिक शुक्ल पक्ष की 10वीं वाले दिन 1655 संबत 1712 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕਰਕੇ कि योग जतन कर राखी देह फिर भी चीज पर आई है। असि सतगुरु बाबा लाल दयाल जी समाधि की आगे असि खड़े हाँ, और ये परम पवित्र स्थान है महाराज का। और इतने भी एक मुक्तदास जी महाराज जी की सज्जे पासे और खब्बे पासे तपादास का भी असी चिन्ह बना करके रखा हुआ है, क्योंकि सारिया समाधि जड़ियाँ हैगियां सतगुरु बाबा लाल दयाल जी के पास ही हैगियां। और ये असी सतगुरु बाबा लाल दयाल जी का विग्रह जोड़ा है इतने है। हुण असी धीरे धीरे जा रहे हैं जिते कि सतगुरु बाबा लाल दयाल जी महाराज जी तप करते थे। बट वृक्ष जड़ा है आगे बड़ा प्राचीन है, पता नहीं कितनी बार टूटा है, और लेकिन फिर भी अवशेष बने हुए हैं। जिदा कि असी देख रहे हैं महंत हेतु मुख राम जी जोड़े सतगुरु बाबा लाल दयाल जी के परम शिष्य हुए हैं, और इधर नाल ही महंत साधु राम जी महाराज जी, और इधर नाल ही महंत ध्यानदास जी महाराज जी। और ऐसे देख रहे हैं कि इतने ही महाराज जी का महंत हरिदास जी महाराज जी का, महंत द्वारकादास जी महाराज जी का, महंत दीपदास जी महाराज जी का समाधि स्थल है। और ये समाधि है परम श्रद्धेय गुरु महाराज भरतदास जी महाराज जी की, ये भी नाल है। और ये अगे समाधि है महाराज जी की परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन महंत राम प्रकाश दास जी महाराज जी की, जिन्होंने कि अपना 60 साल तक इस स्थान में सेवावां प्रदान कीतियां। पंजाब प्रदेश के 1967-68 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ भी रहे, और इस क्षेत्र के मसीहा थे। बिजली का, पानी का और शिक्षा के क्षेत्र के विच, सड़कों के क्षेत्र के निर्माण के विच महाराज जी का बहुत बड़ा हथ रहा। अज भी इलाका निवासी जड़े हैं इन्होंने अपने मसीहे के तौर पर मनते हैं, और जिहड़ी इन्होंने इलाके की सेवा की वो कदे भुलाइयां नहीं जा सकदियां। और इस गुरु परंपरा के विच भी महाराज जी का 60 साल तक गद्दी ते विराजमान रहना बहुत ही एक बड़ी गल हैगी है। ये नाल ही असीं जा रहे हैं। आस्ते आस्ते पिछे वट वृक्ष है जिहदा कि पहले असीं जिक्र कर रहे थे कि वट वृक्ष ये साक्षात 400-500 वर्ष पुराना और बड़े बड़े इतिहास का जड़ा साक्षी है। इतने महाराज जी जैसे तप करया करते थे, एकांत से तप करया करते थे, ये वही स्थान है। असीं देख रहे हैं कि वट वृक्ष बड़े इहदे कुछ टहने कई बार टुटे, कई बार जड़ा है भी नष्ट हो गए ये मतलब, लेकिन अजे भी इन्हें अपना जड़ा है एक बावजूद बना करके रखा है। क्योंकि ये भी एक साक्षात कह लो कि वट वृक्ष जड़ा है ये भी भगवान का साढ़े वास्ते ये भी गुरु लोग है। लोग इत्थे आते हैं जो स्नान करते हैं, कई मातावां बहनावां बॉडी स्नान करती हैं, संतान वास्ते प्रार्थना करती हैं, ना विवाह आते हैं जिन्होंने भैनों के विवाह नहीं होंगे, एक धागा बन के जाते हैं और उन्होंने मन दी मुरादां पूरियां होंदियां। इत्थे भी हर शुक्ल पक्ष के रविवार वाले दिन
ਕਈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਔਰ ਬਹਿਨਾਵਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਬੜਾ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਟ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਾਰਟ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕਿ ਪੂਜਯ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹੰਤ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸੰਤ ਵੀ, ਯੋਗੇ ਸੰਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1-2 ਫਰਲਾਂਗ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਲ ਪ੍ਰਕਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਮੰਡਲੂ ਦਾ ਜਲ ਸਿਰਕ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਫੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਸੀਮਟ ਦੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਹਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਥਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਔਰ ਰਾਮਪੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਹਰ ਵਰਸ ਕਿ ਨਾ ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ੁਕਲ ਪਕਸ਼ ਦੀ ਦੂਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੀਪਾਵਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ੁਕਲ ਪਕਸ਼ ਦੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਥਾ, ਕਦੇ ਭਗਵਤ ਕਥਾ, ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹਾਯੱਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਮ ਕਥਾ ਦਾ ਔਰ ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਮਾਸਾ ਹੈ। ਚੁਮਾਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੱਟਿਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਏਕਾਂਤ ਵਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। कितना निर्जन और नीरव, कोई कीप साइलेंट वातावरण है। इतने ना चाहते हो जड़ा है ना कुछ चिंतन करने वास्ते, सुप्रीम पावर नाल जोड़ने वास्ते दिल करता है असी उस जगह दे विच, क्योंकि जिते इतने महापुरखों ने तप किया, तपस्या की, निश्चित तौर पर जगह जड़ी एक पवित्र हो चुकी है और इतने इसका कण कण जड़ा है पवित्र है। और भी एक गल चलते चलते मैं तुम जानकारी दे देवा। सतगुर बाबा लाल दयाल जी महाराज जी के परम शिष्य की परंपरा में, हालांकि वो नहीं आते, बाबा ध्यानदास जी महाराज जी जिन्हों के नाम से ही कि ना ध्यानपुर का नाम पिया, वो बाबा ध्यानदास गुरु महाराज जी परंपरा भी दीक्षित नहीं थे, दादू पंथों दीक्षित थे। लेकिन शायद जितनी सेवा महाराज जी ने की बाबा लाल दयाल जी की, शायद होर किसी जड़ा है उन्हें शिष्य परंपरा भी की होएगी। आ परिणाम ये होया कि ध्यानपुर का दरबार अज भी जड़ा है बाबा ध्यानदास जी के नाम से जड़ा है प्रचलित है और युग युगांतरों तक जड़ा है अपनी ख्याति जड़ा है वो दसेगा। और ये नाल ही लेकिन आखिरी समय जदों सन 1655 और कार्तिक शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी और दीपावली, उस दिनों की दीपावली थी, पहले महाराज के सारे शिष्य इकट्ठे हुए थे और बाबा लाल दयाल जी महाराज जी ने उन्होंने बड़े अच्छे ढंग के नाल आयोजन होया, बड़ी खुशी के नाल दीपावली मनाई गई। और प्रतिपदा वाले दिन ही लगभग जदों बैठे महाराज जी संगत बैठी, महाराज जी ने कह दिता कि योग जतन कर राखी देह, फिर भी चीज पर आई एह, कि शरीर जड़ा है मैं संभाल के रखा है लेकिन फिर भी एक चीज पर आई है। तो आई तो 10 दिन के बाद मैं इस 5 भौतिक विनश्वर शरीर में छड्डन जा रहा हूँ। ये सुन के ध्यानदास नूं बड़ा अजीबो गरीब लगा, कहणगे किदां हो सकदा महाराज जी, असीं तुहाडे बिना किदां रहांगे। महाराज क्या कि तो भगवान का विधान है, आप
हमारी जो आगे जो है हमारी जिम्मेदारी आप संभालो। लेकिन ध्यानदास बड़े विचलित हो गए। वो कहेंगे कि महाराज जी ये कभी नहीं होगा। और चलो वो प्रतिपदा की रात निकली और दूसरे दिन भी यही चर्चा हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। महाराज कहने लगे मेरा आदेश तो अटल है, जो संकल्प मैंने किया है। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो इस शरीर को 1000 साल तक रख सकता हूँ, लेकिन भगवान ने जितना काम मुझसे करवाना था वो काम मैंने कर दिया। और ध्यानदास जी रात को सोए और उसके बाद जब सुबह उठे उनकी चादर के नीचे फूल निकले थे। और अभी नीचे बाबा ध्यानदास जी महाराज जी की समाधि है, बनी हुई है। और इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि क्षय श्राद्ध हम कहते हैं जिस दिन कोई व्यक्ति ना पूरा होता है। बाबा ध्यानदास जी तृतीया को उन्होंने अपना चोला छोड़ा। सतगुरु बाबा लाल जी महाराज ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की 10वीं को चोला छोड़ा। किसी भी स्थान के ऊपर जो 2 दिन जो हैं, जो 2 श्राद्ध नहीं किए जाते, केवल और केवल राम पर किए जाते हैं। अब धीरे धीरे बाकी लादवारों के बीच में भी जो है गद्दी की रीति करना शुरू हो गया है, लेकिन हमारी परंपरा जो है उसी समय से चली आ रही है। बाबा ध्यानदास जी महाराज की समाधि और जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया का दिन और कार्तिक शुक्ल पक्ष की 10वीं का दिन जो है मनाया जाता है। तो हम इसी स्थान के ऊपर यहाँ पर खड़े हैं और हम इसको मंजूमा ने आपको बात बताई कि बाबा लाल जी महाराज का चतुर्मास जहाँ पर काटना संकल्प था उनका कि 8 महीने भ्रमण करेंगे और उसके बाद जो है 4 महीने जो है जहाँ पर जो है, क्योंकि शुरुआत महाराज जी ने जो गुरु महाराज जी से अलग हुए चेतन दास महाराज जी से, उसमें महाराज हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जो कि उस समय का नगरकोट कहा जाता था, त्रिगर्त कहा जाता था, वहाँ पर उनकी अंतिम मुलाकात हुई थी। और फिर महाराज जी इधर आगे शिवालिक की पहाड़ियों में पहला चौमासा काटा। वातावरण बड़ा अच्छा लगा, लोग बड़े अच्छे लगे। महाराज जी ने ये निश्चय कर लिया कि जब भी ये चौमासा आएगा, बरसात आएगी, 4 महीने जहाँ पे काटेंगे और आखिरी समय तक यानी संवत 1712 कार्तिक शुक्ल पक्ष की 10वीं तक महाराज जी ने जो गद्दियों का विभाजन किया, जो गद्दियाँ उन्होंने अपने शिष्यों को सौंपी, वो भी उन्होंने यहाँ पर जो है कर दिया। तभी से लेकर के अलग अलग स्थानों के ऊपर महाराज जी की जो है गद्दियाँ 22 गद्दियाँ पंजाब प्रदेश के बीच में ध्यान पर धाम जो कि बड़ा पवित्र स्थान है और लाल तुरंगी द्वारा भी कहा जाता है। आने जाने के साधन बड़े अच्छे थे उन दिनों और सभी श्रद्धालुगण, सभी सेवक लोग, जहाँ तक कि दारा शिको जो कि बाबा लाल जी का परम भक्त था, उस समय का वो गवर्नर भी था पंजाब, महापंजाब का, वो भी उसी रास्ते से लाहौर जाया करता था। और वहीं पर जो है बाबा लाल जी की उनके साथ मुलाकात हुई और धीरे धीरे इस परिवार से भी संपर्क बने। और महाराज ने जो है दारा शिको को इतना तराशा कि बाबा लाल जी ने अपने संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद उससे करवाया। ईशोपनिषद जो कि हमारा उपनिषदों के बीच में बड़ा महत्वपूर्ण जो है एक ग्रंथ है आध्यात्मिक विद्या का, उसका भी उन्होंने जो है ज्ञान करवाया। और उसका ट्रांसलेशन कुछ ऐसे शब्द जोड़े गए, फारसी के शब्द और संस्कृत के शब्द। आज भी उसको जो है अल्लो उपनिषद कहा जाता है। ईश मैंने ईश्वर, अल्लाह मैंने ईश्वर, उपनिषद मैंने धार्मिक ग्रंथ। यानी उपनिषद ऐसा ज्ञान जो कि गुरु परंपरा के द्वारा गुरु के पास बैठ करके प्राप्त किया जाता है, उसको उपनिषद विद्या कहा जाता है, वेदांत विद्या कहा जाता है। वो महाराज जी ने उसका ट्रांसलेट किया ताकि हमारी संस्कृति का, हमारे धर्मों का, हमारे पवित्र ग्रंथों का प्रचार प्रसार जो है विदेशों के बीच में हो, बाहर भी हो। जय महाराज का जो है सत्य बाबा लाल जी महाराज की जो है भक्ति काल के युग के बीच में समाज सुधारक, अष्ट सिद्धि के दाता और जो है इन्होंने इस लंबी आयु प्राप्त की और शीर का कायाकल्प भी किया। शायद ही किसी संत ने जो है ऐसा कार्य किया होगा। बाबा लाल जी का चित्र प्राय उनका स्वरूप हमें बाल अवस्था का दिखाई देता है, क्योंकि योगी थे, वो एक आरूढ़ योगी थे और उन्होंने जो है वो अद्वैतवाद को मानते थे और साकार भगवान की जो है उन्होंने जो है उपासना की। वही एक स्थल है। 22 गद्दियाँ
उनके बीच में काबल गढ़नी गंधार, वहाँ पर मुस्लिम कंट्री के बीच में इनको पीर करके माना जाता है। लाल मलंग और लाल पीर कहते हैं। और जहाँ पर जो है बाबा लाल दाजी महाराज को जो हम बाबा करके मानते हैं, बाबा 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 नहीं, बाबा बाबा शब्द है, बाबा है कि जो कि धर्म की रक्षा को करने वाला है। बाप धातु है संस्कृति की रक्षा करने अर्थ के बीच में। तो महाराज जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने जीवन के बीच में धर्म का प्रचार करने की, जो गुरु परंपरा तरह से चली आ रही है। और हम सभी जहाँ पर हैं, आप राजेंद्र धवन जी जहाँ पे आए बहुत अच्छा लगा। भगवान बाबा लाल दाजी महाराज जी की बड़ी असीम कृपा है आपके ऊपर, इसी प्रकार से बना रहे, आपका परिवार भी बढ़ता फूलता रहे। और सभी आगे 23 जनवरी को जो है सत्य बाबा लाल दाजी महाराज की बड़ी दूज जिसको हम मनाते हैं, वो पूरे भारतवर्ष के बीच में मनाई जाएगी। सभी भारतवासियों को, बाबा लाल दाजी के अनुयायियों को, बाबा लाल दाजी की संगत को दरबार बाबा लाल दयाल दातार पर और रामपुर की ओर से बड़ी दूज की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, ज्ञान में हो, निष्ठा में हो। अब अपनी परंपरा का पालन करते रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ वाणी को विराम। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सतगुरु बाबा लाल दयाल महाराज की जय। जय जय।